evening, everybody. We'll start with the next session, which is cinematic storytelling with the EOS C50 for festivals and events. The speaker is Ridhin Panchmatia, who is a Canon India photo mentor and an EOS influencer. Please welcome him on stage with a round of applause. Thank you. Hello everyone. Check, mic check. Yeah, audible? Okay. Can I have the presentation please? Okay. So my name is Ridhin Panchmatia. My company's name, I'm founder of the Moneta, a Canon India US influencer, mentor and a TEDx speaker. I want to play a video of C50 at first, what we are going to talk about. And we have the people who shot it also and we have the people who edited it also in the crowd. I'll play the video quickly. Thank you. So I've got a couple of videos, but in between मैं थोड़ा बात भी कर लूँगा. And one more video, what I do normally, like, this was a video for C50 which we recently shot, and this is the first time ever we played it publicly. There's one more video of, like, what I normally do in music festivals and events and everything. A very short video, quick video. Okay, so a quick introduction. As you guys saw, like, that I shoot normally music festivals. Tomorrowland, which is the world's largest music festival, I've been shooting there since 2015, which happens in Belgium, Europe. Then Sunburn Festival, which is Asia's largest music festival, India's festival. I've headed their team since 2011 for photography for over 10 years. Then there are many other festivals, Parukaville, Germany, Storm Festival, China, DLDK, Hong Kong, Indonesia. So over the last 16 years, I've shot more than 1500 events and in over 21 countries. Now, before I go ahead, I just want to see a quick raise of hands. English, Hindi works, English, Hindi, Hindi, ठीक है, तो हिंदी में बात करते हैं. Okay, so पिछले 16 सालों में more than 21 countries, 1500 events. कुछ photos जो मेरे प्यारे हैं. Spring Wave Sunset, Taiwan Festival, Sunburn India, Storm Festival, China, Tomorrowland. जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल, दिन में 2 से 2.5 लाख लोग आते हैं, अटेंड करते हैं. Apart from this, we shoot for artists also. In India, we have DJ Chetas, Shan, Badshah, Shirley Setia, international clients who are Russell Peters, the stand-up comedian, DJ Snake, the world #3 DJ,
some of the photos from there. Apart from music festivals, over the last 16 years मैंने 8 बॉलीवुड मूवी शूट किए, मार्केटिंग स्टिल्स उनके जो आपको पोस्टर्स पे दिखाई देते हैं, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई. कुछ फोटोज जो मेरे फेवरेट है, पागलपंती वी शॉट इन लंडन फॉर 3 months विद अनिल कपूर एंड जॉन अब्राहम, परिणीति चोपड़ा के साथ हंसी तो फंसी. NH10 was in Jodhpur, Kumketu with Nawazuddin in Lucknow. My journey quickly started as a photographer, as a workshop attendee. In fact, I have a picture from there. I'm sitting right here, like you know, one of you guys. I'm sitting here, and I never intended to be. मुझे कभी भी photographer नहीं बनना था. And someone came and someone was talking about light painting, और तभी मेरी photography की journey चालू हुई. I wanted to understand light painting. So this was the first picture which I took, and now, like you know, सीखते सीखते I became a director, I became a cinematographer, and recently we shot, like you know, the Ambani Anant Radhika and Anant Radhika wedding, Air India Express launch, the cruise launch, so many campaigns, and the Coldplay event, Badshah event, Guns N' Roses. Coming to what the topic is, today's workshop, cinematic storytelling in festival and events. What is cinema? मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी या पोस्ट प्रोडक्शन वो सब बातें करते हैं, वी थिंक ऑफ एवरीथिंग एज इक्विपमेंट, वी थिंक ऑफ एवरीथिंग एज स्पेसिफिकेशंस, वी थिंक ऑफ एवरीथिंग एज फीचर्स. सिनेमा इज नन ऑफ दिस. सिनेमा एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर वी हैड 7K, 8K, 4K, फुल HD, एवरीथिंग. सिनेमा इज इमोशन. व्हाट डू यू मेक पीपल फील? जब भी आप सामने बैठे हैं मेरे, आपको क्या फीलिंग आ रही है? इट इज़ नॉट अबाउट मेरे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, इट इज़ नॉट अबाउट माई वीडियोज़, इट इज़ अबाउट द फीलिंग विच यू गेट आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग. नाउ एट इवेंट्स, नॉर्मली द मेन फीलिंग विच वी need to take is the FOMO, FOMO, fear of missing out. If you don't attend an event, अगर आप ब्रॉडकास्ट इंडिया पे नहीं है और आप कंटेंट इंडस्ट्री के हैं, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहे हैं. हाउ डू दीज फीलिंग्स ट्रांसलेट? ओनली बाई फोटोज एंड वीडियोज. दैट इज सिनेमा. व्हेन यू मूव पीपल विथ योर वीडियो वर्क. नाउ talking about C50, that like, you know, I tried my hands on with C50, we went to Dubai, we saw the videos. What happens in events, you don't have time to plan the entire shoot. You need to shoot on the go. आपको on the go shoot करना पड़ता है. आपके शॉट्स आप कितने भी प्लान करके रख लो, वो लाइफ जैसे होता है कि like, you know, कि मुझे 20 साल पे ग्रेजुएट होना है, 25 साल पे MBA, 30 साल पे शादी, जो होता नहीं है फिर. The same way in events and life, we don't get to plan things. हमारा कितना भी प्लानिंग हो या कुछ भी हो, it doesn't work. So the very first feature which I like is that C50 is very compact. We were talking just right now that like, you know, that I travel a lot, 21 countries in 16 years. Like in the last 6 weeks itself, like, you know, I've gone to 12 different cities. And when you travel a lot, how do you shoot cinema constantly? You cannot carry the big heavy cameras. You need something light and compact, and that is something where C50 really worked wonders. It's 670 grams, like, you know, it is so light, it's, you don't actually feel that you are holding a cinema camera. The next thing, this is something मुझे लगता है कि like, you know, लोगों को बहुत कम वो आदत होती है. हम जब भी कैमरा में रहते हैं ना, हम जब भी कुछ शूट करते हैं, वी आर ऑलवेज इन द कैमरा, कभी सामने नहीं देखते हैं. क्यों? क्योंकि हमें सेटिंग्स चेंज करने पड़ते हैं, मेनू में जाना पड़ता है. फॉर मी द बेस्ट feature of this camera are the 14 customizable buttons. This is like extension of my arm. Every 3 directions which I'm moving right now, हर एक जगह पर exposure अलग है. यहाँ पर white balance अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है. If I want to change anything, audio, sound, whatever, buttons are so beautifully customizable, and I cannot even begin to talk about कि कितने features हैं अंदर. Hindi is okay with everyone, ना sir? Yes? Okay. The next part is the active cooling. The reason why I went to Dubai, क्योंकि obviously दुबई में शूट था, बट दुबई में डेजर्ट भी है, तो वहाँ पर तो मतलब 50 डिग्रीज के ऊपर like, you know, टेम्परेचर रहता है इन द सफारी. वी शॉट आई थिंक 6-7 hours इन द सफारी. कुछ दोपहर में 2 बजे गए थे, एंड देन वी वेंट ऑन टू शूट टिल 9-9:30, एंड इट इज़ हॉट. वहाँ पर ना AC है, ना टेंट है, ना एटलांटिका है. सो वी केप्ट शूटिंग फॉर 7-8 hours.
विदाउट वरिंग अबाउट कि लाइक यू नो कैमरा ओवर हीट होता है, बिकॉज दे हैव फैंस इनसाइड और वेंट कूल्स है, लाइक यू नो देयर आर 3 वेंट्स विच आर अवेलेबल एंड देयर इज एक्टिव कूलिंग इनसाइड द C50. सेकेंड थिंग, वो आई गॉट वन, मैंने एक हैंड्स ऑन का रील डाला था मेरे इंस्टाग्राम पर और किसी ने कमेंट किया था कि 7K रॉ ओपन गेट क्या काम आएगा जब भी 4K भी यूज़ नहीं करते हम लोग. आज 10,000 के फोन्स है, ऑल द फोन्स हैव 4K. टीवी में भले 4K हो ना हो, बट द रीजन वाई ओपन गेट वर्क्स, ओपन गेट इज बेसिकली, अगर जिसको नहीं पता है ओपन गेट, पूरा का पूरा सेंसर आपका 3:2 में शूट करता है. नाउ यहाँ पर जितने भी जन हैं, मुझे 3 कैमरा दिख रहे हैं बट कम से कम 50 फ़ोन दिख रहे हैं जो शूट कर रहे हैं, और वो 50 फ़ोन मतलब इंस्टाग्राम पे वर्टिकल रील जाने वाली है. बट एट द सेम टाइम हम जब भी सिनेमा शूट करते हैं, सिनेमा इज़ वाइड. द मेन प्रॉब्लम आपको फेस्टिवल या इवेंट्स में क्या होता है, आप जब भी शूट करते हैं तो क्लाइंट के डिलीवरेबल्स इतने होते हैं बट सब चीज़ दुगना हो जाता है पेमेंट के सिवाय. आपको वाइड में भी करना है, आपको वर्टिकल में भी करना है. सो ओपन गेट बेसिकली अलाउज मी, मैं वाइड फ्रेम शूट कर रहा हूँ एक कार्ड पे, दूसरे कार्ड पे मुझे वर्टिकल कट मिल रहा है. सो इन द सेम फ्रेम मुझे यहाँ पर एक स्लॉट दिख रहा है जो 16:9 या 17:9 है, और वर्टिकल स्लॉट दिख रहा है जो 9:17 है. एंड इट हेल्प्स मी बेटर, क्योंकि मुझे जो सोशल मीडिया कट देना है वो आधे घंटे में देना रहता है कि आज इवेंट खत्म हुआ 6 बजे, 6:30 बजे वो रील अपलोड हो जाना चाहिए इंस्टाग्राम पे. वो कल जाएगा तो कल की बात पुरानी हो गई. सो दैट वे C50 का दिस फीचर एक्चुअली वर्क्स मच बेटर कि मेरा एक कार्ड तो ऑलरेडी सोशल मीडिया वाले को चले गया. 7K एंड ओपन गेट एक्चुअली वर्क्स हियर. आप जब भी ओपन गेट पूरा का पूरा फ्रेम शूट करते हो 7K में, आपको ओवर सैम्पल करके यू आर गेटिंग 17:9 एंड 9:17. एंड दिस वे बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, आप अगर 4K भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ओवर सैम्पलिंग वाला फुटेज मिलता है. एंड लाइक ना यू लुक एट द क्रिस्पनेस. आप जब भी सैंड वाले शॉट्स देखोगे, आई डोंट नो एक्चुअली, मैंने स्क्रीन टेस्ट नहीं किया, बट अगर आप सैंड वाले शॉट्स देखोगे, द ग्रेन्स दे लुक सो ब्यूटिफुल. And the low, like you know, the ISO in low light, the dual base ISO 800 and 6400, you look at the shots and like you know इतने beautifully dynamic range capture करते हैं throughout the dual base ISO. मतलब for me it is very surprising that a camera this small can work so well. And since I mentioned like you know that I work in a lot of events, I work in a lot of festivals where like you know, you need to do multicam setup, and over there the main problem what used to happen is people who are here from music industry or like you know in general events industry, the audio is so difficult, you need a different sound recordist. एक sound recordist चाहिए, एक कोई zoom पे लिया या 664 पे लिया ऑडियो, फिर एम्बियंस लिया, फिर दूसरा लिया, उसको बाद में टाइम सिंक करने जाओ आप, that becomes so much a hassle. But here basically with the dual XLR, my entire workflow, in fact like you know मैंने 6-7 महीने पहले मैंने कुछ ज़्यादा ही पैसे डाले थे वो वर्कफ्लो बनाने में कि मैं टेंटिकल सिंक और वो सब चीज़, मैं DT के टाइम कोड एंड एवरीथिंग आई एम वर्किंग, कि 4 ऑडियो के डिवाइस में ले रहा हूँ. यर वाइल शूटिंग ओनली मेरे एक ही कार्ड पे, एक ही कैमरा पे 4 चैनल ऑडियो के छप जाते हैं. इट्स कॉपी पेस्टेड लाइक यू नो दैट आई कैन इनपुट 2 XLRs with 4 different audio channels and easily remove the not remove but reduce the sound. अगर मुझे -40 -60 डेसिबल पे जाना है इन कैमरा, आई कैन डू इट. नाउ द मेन डिफरेंस हियर, बिकॉज वी हैव अ वेरी वाइड variety of people. There are people here from broadcast, there are people here from cinema, there are people here from events. And because I have worked on 8 Bollywood movies also, I know the very core difference. एक DOP और एक सिनेमेटोग्राफर या एक इवेंट के जो वीडियोग्राफर है, उसमें बहुत डिफरेंस कहाँ पर होता है, प्री प्रोडक्शन में. प्री प्रोडक्शन में आपको अगर शूट का बताऊँ, फॉर एग्जांपल मूवीज़ का बताता हूँ. मूवीज़ में क्या होता है, स्क्रिप्ट रीडिंग होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग होता है, स्क्रिप्ट रीडिंग होता है, फिर मूड बोर्ड होता है, फिर शॉर्ट डिवीजन होता है, लुक बुक होता है, फिर आप रेकी करने जाते हैं, टेक्निकल रेकी होता है, फिर स्केड्यूल होता है, फिर शूट होता है, रफली करेक्ट. इवेंट्स में क्या होता है, प्री प्रोडक्शन मतलब इवेंट किधर है, कितने बजे है और क्या इवेंट है. आपका प्री प्रोडक्शन खत्म हो गया, आप जाएंगे शूट करने के लिए 1 घंटे पहले. वो that is a definite difficult part, because normally for events you are continuously shooting, and even when you do recce's and everything, things change. The reason why I actually rely on equipment much better and 14 customizable buttons की मैं जो बात कर रहा था,
बिकॉज आई कैन नॉट वेट कि मैं यहाँ पर अगर मैं शूट कर रहा हूँ, मैं स्पीकर को नहीं बोल सकता कि भाई रुक जा 5 मिनट, मैं थोड़े सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ जो आपको मूवीज़ या सिनेमा में टाइम मिलता है। शॉर्ट डिवीजन यहाँ पर बैठ के नहीं कर सकता मैं, वो ऑन द गो करना पड़ता है। So, as I mentioned, during festivals and events, what happens? आप शूट कर रहे हो और स्टोरी तभी बन रही है, पहले से बनी हुई स्टोरी नहीं होती है मोस्ट लाइकली। फिर आपको नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, ये स्पीकर क्या करने वाला है। मुझे नहीं पता अगर आप सब बैठने वाले हो कि नहीं, 5 मिनट में निकल जाओगे कि क्या बोर कर रहा है। देन लाइट्स चेंज ड्रास्टिकली। आई वॉज रिसेंटली टोल्ड यहाँ पर लाइक दैट फेस लाइट कम है तो और एक लाइट लेके आते हैं। इन मूवीज एंड सिनेमाज यू पुट लाइट्स एवरीवेयर, सो यू नीड डायनेमिक रेंज। और डायनेमिक रेंज किधर होता है? सिनेमा कैमराज में। छोटे कैमराज में वो डायनेमिक रेंज नहीं होता है। इन दिस यू हैव 15+ डायनेमिक रेंज। एंड आपका एडिट जो बनता है वो पोस्ट में बनता है। आपकी स्टोरी जो है वो या तो पोस्ट पे बनती है, हम लोग टाइम के टाइम साथ में सोचते रहते हैं कि ओके व्हाट विल वी मेक। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर what we do at Sunburn और what we did at Sunburn। मैं जब भी उसकी टीम हेड करता था फोटोग्राफी की, पहले एक फ़ोटो का एग्जांपल देता हूँ, फिर एक वीडियो का एग्जांपल देता हूँ। दिस इज़ एन इवेंट्स। आई मूव्ड अवे फ्रॉम द C50 एंड एवरीथिंग। मैं फेस्टिवल्स और इवेंट्स में क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। प्री प्लानिंग में और वो सब चीज़ तो काफ़ी होती है। फॉर एग्जांपल सनबर्न जो हम लोग, आई थिंक ये 2021 या 22 का है, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट सनबर्न का जो 31 का गोवा में जब ये होता था, न्यू ईयर्स पे फायरवर्क्स जो होते थे वो कम से कम दे यूज्ड टू स्पेंड 12 से 15 लाख रुपए जस्ट फॉर फायरवर्क्स। नाउ आई हैड अ टीम ऑफ 8 फोटोग्राफर्स विथ मी। नॉर्मली क्या होता है, अगर 8 फोटोग्राफर है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर है, समझ लीजिए 4 फोटोग्राफर है, मोस्ट लाइकली यहाँ पर 2 रहेंगे, वहाँ पे 2 रहेंगे, दैट इज द एंड ऑफ इट, बिकॉज देयर इज नो प्लानिंग internally in the team. But there what we used to do is we used to take the map of the entire event. सॉरी, एक इवेंट का पूरा मैप लिया, फिर हम लोग ने रेकी के पहले मार्क कर रही पोजीशंस दैट लाइक दैट अगर ये स्टेज है, द ऑरेंज वन इज द मेन स्टेज, एक फोटोग्राफर स्टेज के नीचे रहेगा, एक फोटोग्राफर स्टेज के ऊपर रहेगा। अभी यहाँ पर भी एवरीवन, बिकॉज अगर डीजे स्नेक बजा रहे हैं या फिर मार्टिन गैरिक्स बजा रहे हैं तो सबको स्टेज पे रहना है कि मुझे वो इंस्टा पे सबको दिखाना है कि देखो मुझे स्टेज एक्सेस मिला, ये डीजे के पीछे हूँ मैं, ये वो। बट वो चीज़ हमें पहले ध्यान रखनी है कि वो सबको मिलना चाहिए एक मौका। और फोटोज़ इन दी एंड जब भी क्लाइंट को हम देते हैं, एज अ टीम शूट कर रहे हैं या वीडियो शूट कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी वेरी प्लान्ड, एग्जीक्यूटेड वेल। सो व्हाट वी डिड वाज, एक फोटोग्राफर स्टेज के ऊपर, एक फोटोग्राफर स्टेज के सामने, एक जायंट व्हील पे है, एक बहुत ही दूर है, फिर एक हम लोग ने यहाँ पर प्लान किया था। एंड देन रेकी करने के टाइम हम लोग को पता चला कि हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर बुशेज है, झाड़ियाँ है, तो वो फोटोग्राफर्स को मूव करना, वो लेंसेज वैसे चेंज करना, या फिर लाइक द एंटायर शॉट डिवीजन ओवरऑल। ये शॉट के टाइम पे दीज आर, मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स रखे, 8 फोटोग्राफर थे, बट ये सेम फायरवर्क्स है 4 या 5 अलग अलग एंगल से। दिस इज द फायरवर्क शॉट। ये दूर से एक 24-70 से लिया हुआ है। फिर द सेम शॉट फ्रॉम एन 8-15 फिशआई लेंस, क्राउड के नज़दीक से। ये स्टेज के ऊपर से जहाँ पे सबको इंस्टाग्राम स्टोरी डालनी रहती है, देखो मैं डीजे स्नेक के पीछे हूँ। एंड सेम फिशआई बट थोड़ा एक अलग एंगल वेर यू सी द एंटायर होराइजन, द वाइड एंगल ऑफ द क्राउड, नॉट जस्ट द स्टेज। All these photos are taken at the same time. Now this is, ये तो वीडियो फोटो की बात हो गई, हम लोग यहाँ पर वीडियो की बात कर रहे हैं, सिनेमा की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, मैंने सॉरी आनंद और राधिका के वेडिंग के लिए शूट किया था। वहाँ पर बहुत सारी टीम थी, ब्रॉडकास्ट की टीम हमारी थी, जो बाजू में ही NMACC है, श्री नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, वहाँ पर उनका संगीत हुआ था। तो संगीत के टाइम पे भी हमारा लिमिटेशन क्या था कि इतने सारे लोग आने वाले हैं और बड़े बड़े कैमराज लेके हम लोग नहीं रह सकते, तो पूरा मार्किंग करना। सो फॉर एग्जांपल नॉर्मली व्हाट आई डू इज़, मेरे पास एक फ़ोन में भी ऐप है कि कितने फोकल लेंथ पे मेरा कौन सा लेंस होना चाहिए। मैं फेस्टिवल और इवेंट्स की बेसिक बात कर रहा हूँ। जब भी मार्किंग करना है हमें पहले से, हम लोग कैमराज लेके जा नहीं सकते बड़े बड़े,
अगर C50 है तो वो तो कहीं पर भी लेके जा सकता है डेफिनेटली. सो कमिंग बैक टू, आप जब भी रेकी कर रहे हैं, आपने एक फ़ोटो ले लिया, फ़ोटो पे जाके बाद में अगर समझ लीजिए आपके पास मैप मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है कि मुझे बड़े कैमरास किधर लगाने हैं, PTZ किधर लगाने हैं, वो हिसाब से मुझे रिएक्शन शॉट्स मिलेंगे. और ये रेकी की जो शीट है, ये शीट मेरी टीम को जाती है, मेरे एडिटर्स को जाती है, क्लाइंट्स को जाती है, सिक्योरिटी टीम को जाती है और प्रोडक्शन टीम को जाती है. तो ये रेकी के पार्ट में तो मतलब लाइक ना बहुत कुछ है कि लाइक ना आपको हर एक चीज़ देखना पड़ता है. एज एन इवेंट फोटोग्राफर एंड इवेंट फिल्म मेकर, आई हैव सीन कि बहुत कम जन फेस्टिवल्स और इवेंट्स में उतना डिटेलिंग में प्लानिंग करते हैं जो एक्चुअली हम लोग सिनेमा में करते हैं. द रीज़न वाई इक्विपमेंट्स, हम लोग इक्विपमेंट को नज़रअंदाज क्यों करते हैं, बिकॉज वो काम आ जाता है बिना कुछ करे. आज अगर हम लोग एक्चुअली करके काम मतलब प्री प्रोडक्शन प्रिपेयर करके जब भी शूट करने जाते हैं तभी इट वर्क्स मच बेटर. इट कैन गिव यू 10 times द रिजल्ट्स. सो coming to this part, I'll show you a video here also, which there is one video which I'm allowed to share. Different angles. Here I cannot move my cameras a lot. आप समझ लीजिए देश की सबसे बड़ी शादी जो पिछले 1 साल में हुई है उसमें आप है, एक कल्चरल सेंटर में है, वहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोग हैं, हाई प्रोफाइल पीपल, और आप मूव नहीं कर सकते, बट यू हैव टू कैप्चर ईच एंड एवरी फेस. सेम जगह पर वी शॉट रोहित शर्मा एंड द इंडियन टीम बीइंग फेलिसिटेटेड बाय श्रीनीता मुकेश अंबानी. सो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि कभी इम्प्रॉम्प्टू चीज़ें हो सकती है. जैसे लाइफ में मुझे 30 साल पे लंदन जाना था, बट मैं अभी भी पवई में हूँ, बॉम्बे में हूँ. तो द सेम वे इन इवेंट्स सो मेनी डिफरेंट थिंग्स लाइक कैन हैपन एंड यू हैव टू प्रिपेयर. आपको वो चीज़ रेडी रखनी है कि आप क्लाइंट को नहीं बोल सकते कि मेरा कैमरा वहाँ पर लगा हुआ नहीं था. दिस इज़ वन वीडियो फ्रॉम द अंबानी वेडिंग. What's going on? Are you ready for this one? We're about to go crazy with this, yo. RDB, Nidhi Cole, big up to my boy Buffy. We're about to mix it up like this. Are you ready? Let's go. 1, 2, 3, come on. Let's bounce with it. Let's bounce with it. Let's bounce with it. Come on, come on, come on. Let's bounce with it. Let's bounce with it. Let's bounce with it. Come on, everybody go. Mix it up. Yo, mix it up. Yo, mix it up. Come on, come on. Mix it up. Yo, mix it up. Yo, mix it up. अब मिलके सारे ऐश करें, ये प्यार की दौलत कैश करें. अब मिलके सारे ऐश करें, ये प्यार की दौलत कैश करें. मन में जो आए वो ही पाए, इस दिल की सुनते हम. Bring it back, bring it back, bring it back. Come on. Let's bounce with it. Let's bounce with it. Let's bounce with it. Come on, come on, come on. Let's bounce with it. Let's bounce with it. Let's bounce with it. Come on, everybody go. Mix it up. Yo, mix it up. Yo, mix it up. Come on, come on. Mix it up. Yo, mix it up. Yo, mix it up. Everybody, let's bounce with it. Let's bounce with it. Let's bounce with it. Come on, come on, come on. Let's bounce with it. Let's bounce with it. Let's bounce with it. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. मुझे और बहुत कुछ बताना था, मतलब आई तो विश के और 1 घंटा होता, बट मुझे पता है 1 घंटे में यहाँ पर सिर्फ एक बंदा बचता. बट एनी क्वेश्चन, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. कैमराज के ऊपर, फेस्टिवल्स, इवेंट्स, C50, एंड आई एम ऑनेस्टली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर C50, नॉट बिकॉज लाइक दैट आई एम अ कैनन मेंटर एंड अ कैनन इन्फ्लुएंसर, बट द पावर पैक बॉक्स दैट इज, इट्स वंडरफुल. Any questions? Yes, sir. Hello. So Hi. whenever you shoot events, generally it's noticeable that DJs have those laser light which can damage the sensor. Correct. How do you plan along that? हम लोग एक कैंची लेके जाते हैं, सीजर, और लेज़र के केबल्स काट देते हैं. नो, आई विश आई कुड डू दैट, बट बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, आप जब भी बड़े इवेंट्स पर जाते हैं, देयर आर लाइट इंजीनियर्स. हम लोग लाइट इंजीनियर्स के साथ बात करते हैं, और इन जनरल 10 या 12 फीट के ऊपर हम लोग उनको बोलते हैं कि आप लेज़र लाइट्स रखें. दैट इज़ ओके, बिकॉज अगर आप मोनोपॉड भी यूज़ कर रहे हैं तो यू आर मैक्सिमम गोइंग टू 8, 9 फीट, 10 फीट. फिर उसके ऊपर फिर 360 वीडियो वाले जाते हैं, तो उन पे हम लोग को चाहिए कि उन पे लेज़र जाना चाहिए. बट इन जनरल वी टॉक टू देम दैट लाइक कि आप जो लेज़र की हाइट है वो 10 या 15 फीट के ऊपर रखें. कुछ टेक्नो सेट्स होते हैं या कुछ वैसे सेट्स होते हैं जहाँ पर उन लोग को चाहिए कि लेज़र पूरा फैलना चाहिए क्राउड पे. तो व्हाट वी डू इज़ वी हैव द टाइम स्टैम्प्स कि ये गाना जब भी बचेगा, फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए मुन्नी बदनाम हुई बच रहा है 2:15 को, मुझे वो गाना दिमाग में आ रहा है पता नहीं क्यों,
तो वो गाने पे अगर लेज़र प्ले होने वाला है तो व्हाट वी डू इज़ वी इंश्योर दैट हम लोग लेज़र्स के पीछे हो, एज सिंपल एज दैट. बट देर इज़ नथिंग एल्स विच यू कैन डू. आप दो ही चीज़ कर सकते हो, या तो आप लेज़र बंद कर दो, मतलब कैमरा बंद कर दो, या तो आप लेज़र की हाइट उतनी ऊपर रखो कि आपके सेंसर पर वो डायरेक्टली हिट ना हो. आंसर द क्वेश्चन. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चंस? यस सर. का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था कैमरा शूट का? फर्स्ट टाइम क्या शूट करने का, वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस. ठीक है, मैंने वो स्लाइड रखी थी बट डिलीट कर दी क्योंकि बहुत ही गंदे फोटोज थे. मैंने 3 महीने का एक कोर्स किया था, फोटोग्राफी का कोर्स, खुद के पैसे से, बिकॉज आई यूज टू बी अ डीजे बिफोर. प्लीज सिट. एंड वो देख के मेरे पापा खुश हुए. उन्होंने मुझे कैनन 60D और 18-135, मतलब पहले से ही मेरे पास सबसे अच्छा कैमरा है, मतलब बाकी सब कैमराज अच्छे हैं बट कैनन बेस्ट है. तो कैनन 60D एंड 18-135 का लेंस मेरे पापा ने दिलाया. एंड मेरे चाचा बैठे हैं पीछे, ही इज़ ऑल्सो फोटोग्राफर, तो वो भी आए थे. एंड मेरे पापा ने कैनन 60D लिया. एंड आई यूज टू प्ले गिटार ऑल्सो. मुझे पहले से म्यूज़िक का शौक था. सो वन ऑफ माई फ्रेंड कुणाल गांजेवाला, अगर लोगों को नहीं पता यहाँ पर तो मलिका शेरावत तो पता ही रहेगा. तो शी हैज़ दैट सॉन्ग भीगे होठ तेरे. सो द सिंगर इज़ कुणाल गांजेवाला एंड ही वॉज परफॉर्मिंग एट अ कॉलेज फेस्टिवल इन बॉम्बे. सो उसके साथ जो गिटारिस्ट था वो फ्रेंड था मेरा. मैंने बोला मैं आ जाता हूँ एंड मैं शूट कर लेता हूँ, देखता हूँ कैसे रहेगा. एंड ना पास था ना कुछ था मेरे पास. वी हैव टाइम राइट, 5 मिनट्स. या ना पास था ना कुछ था मेरे पास. और सिक्योरिटी को मेरा कैमरा का बैग देख के लगा कि मैं ऑफिशियल फोटोग्राफर हूँ, तो उसने अंदर छोड़ दिया. कमिटी को लगा मैं ऑफिशियल फोटोग्राफर हूँ, तो उसने मुझे स्टेज पे छोड़ दिया. बट पहले दिन के फ़ोटोज़ मेरे काफ़ी ओवर एक्सपोज थे. ये 3 महीना सीखने के बाद काफ़ी ओवर एक्सपोज फोटोज़ थे, बिकॉज द लाइट्स आर वेरी डिफरेंट, वेरी हार्श एट वन प्लेस. लाइक द लाइट्स हियर आर वेरी डिफरेंट. इफ आई जस्ट मूव फ्रॉम ईयर टू ईयर द लाइट्स आर वेरी, तो ओवर एक्सपोज थे फोटोज़, मोशन ब्लर थे, आउट ऑफ फोकस थे. तो पहला एक्सपीरियंस मुझे मज़ा बहुत आया बट फोटोज़ बहुत ख़राब थे. बट आई केप्ट लर्निंग फ्रॉम देयर. सो दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. या यस सर. सर मेरे को एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर फायरवर्क्स फेस्टिवल में चल रहा है तो आप उसको अपने टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, या फिर आपको पता कैसे होता है कि उस टाइम फायरवर्क्स है और आपकी टीम कैसे लाइक प्लान रहती है ऐसा? सो नॉर्मली जब भी फायरवर्क्स रहते हैं दे आर ऑन द की शॉट्स. फायरवर्क्स एक्चुअली ईजी होते हैं शूट करने के लिए, बिकॉज हमारे शॉट्स जो है ना वो मतलब वो म्यूज़िक टाइम्ड होते हैं कि ये वाले म्यूज़िक पर अगर समझ लो कोई नया डीजे आता है, 90 मिनट का सेट है, पहले 5 मिनट में फायरवर्क्स होने ही होने, आखिरी के 5 मिनट में फायरवर्क्स होने ही होने. ये सिंपल है. डिफ़िकल्ट क्या होता है, और ये चीज़ आपको या तो आर्टिस्ट मैनेजर बोल देगा या स्टेज मैनेजर बोल देगा, आपको पहले से जाके प्लानिंग करना है. डिफ़िकल्ट क्या होता है, जो कन्फेटी होता है, स्ट्रीमर्स होते हैं जो ज़्यादा पैसे वाले नहीं है बट वो कंटिन्यूसली होते रहते हैं. वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, वी लिसन टू द सेट, आर्टिस्ट का सेट, कि उसके नए गाने कौन से. अगर समझ लीजिए नए गाने हैं तो नए गाने पे डेफिनेटली वो होने ही वाला है, क्योंकि वो आर्टिस्ट को चाहिए मेरा ये वाला वीडियो बाहर जाए. एज सिंपल एज दैट. और दूसरा तरीका उसमें ये है कि अगर समझ लीजिए गन्स एंड रोजेज हमने यहाँ पर शूट किया, इसके पहले उन्होंने हांगकांग में परफॉर्म किया, हांगकांग से पहले दुबई में परफॉर्म किया, एंड 90% उनका जो सेट रहता है या जो इवेंट रहता है वो सेम ही रहता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं. तो आपको पता है कौन से गाने कभी आने वाले. एंड जो भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, बहुत कम इंटरनेशनल आर्टिस्ट वैसे रहेंगे जिनके सेट प्लान नहीं रहेंगे, तो आपको पहले से पता रहेगा कि कौन से गाने कभी बजने वाले हैं. सो फायरवर्क्स आर इजी बट द रेस्ट पार्ट इट इज़ डिफिकल्ट, बट उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ता है. Okay, we will have to take some of the questions offline because there is Okay. another session. We'll take which one is last scheduled. session. Yeah, one last, and Sure, sir. because the other speaker is also या waiting now. डेफिनेटली. सर C50 के लिए बोलता हूँ. जैसे इसमें आप बोल रहे थे ऑडियो जैक का, तो 2 जैक का उसमें पोर्ट दिया हुआ है, तो Correct. हम लोग उसको इसमें कैसे कनेक्ट करने वाले हैं? देयर इज अ हैंडल ओके.
हैंडल में आपने कनेक्ट किया, ऊपर हॉट शू है विच इज़ अ स्मार्ट हॉट शू। हाँ। तो आपने कनेक्ट किया, आपके फाइल में ऑटोमेटिकली वो 4 ऑडियो लेयर आ जाता है। ओके, नहीं लेकिन उसके ऊपर हम लोग माइक एक लगाएंगे कि कैसे क्या करेंगे? हाँ, आप माइक भी लगा सकते माइक हैं। लगा सकते तो हैं। फिर आपके मतलब लाइक इंटरनल जो कैमरा है, आपने जब भी माइक लगाया तो इंटरनल कैमरा आपका बंद हो गया, बट वो जो आपका जो माइक है प्लस आपके 2 कंसोल से मैंने एक लिया आउटपुट समझ लीजिए, और एक आउटपुट मैंने CDJ से लिया या मिक्सर से लिया, कोई दूसरे मिक्सर से। ओके ओके, सो मेरे पास 4 लेयर आ गए ऑडियो के ठीक है इंटरनल। ठीक है। और ये सेकंड जैसा हम लोग इस पे वीडियो कर रहे हैं, ओके। तो ये स्टेबलाइज करता है? स्टेबलाइज गिम्बल पे इंटरनल स्टेबलाइजेशन इन टर्म Handy, हैंड हेल्ड पे। फॉर एग्जांपल मेरे 90% ऑफ शॉट्स आपने जो देखे ना हैंड हेल्ड है, Handheld. विद ऑल द लेंसेज यू हैव स्टेबलाइजर्स, Stabilizer, IS इनसाइड द लेंसेज। प्लस आई फील एट द एंड ऑफ द डे आप जब भी इवेंट शूट करते हैं, यू आर नॉट मूविंग अराउंड इन टर्म्स ऑफ आप डॉली जूम नहीं कर रहे हैं, आप वॉक थ्रू नहीं कर रहे हैं। वो वाले वीडियोस आपको कहाँ पर काम आते हैं? दूसरे वेडिंग्स में जहाँ पर स्पेस होता है। फेस्टिवल्स और इवेंट्स में कोई स्पेस नहीं होता है कहीं पे चलने का, आप जहाँ पर खड़े हैं। वी आर फ्रॉम वेडिंग I think with that, we should be wrapping this session because any questions you can take it offline. Definitely. Thank you Thank so you very much, much. Ridin, for Yeah. this wonderful presentation. Thank you. A huge round of applause for Ridin, please.